پاکستانی عوام تحریک اور تحریک منہاج القرآن ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں بے گناہ کارکنان کے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہائی پر اظہار تشکر کیا گیا۔ اسی کی تفصیلات قیصر حبیب کی رپورٹ میں۔ 6 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے 93 اسیران ماڈل ٹاؤن کی ضمانتیں منظور کر لیں، جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ پاکستان عوامی تحریک ڈنڈی کے مقامی رہنما چودھری طلعت محمود نے کہا ہے کہ ہم عظیم قائد کے عظیم کارکنوں کی استقامت پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہر حال میں ان سیاسی مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسیران سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 93 لوگوں کو رہائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج تک اتنی بڑی صحبتیں کاٹنے کے بعد ان لوگوں کے جذبات میں کمی نہیں آئی۔ معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت چودھری مجاہد اسلام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور گورنر پنجاب چودھری سرور کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف کی فراہمی اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے وعدے یاد کروائے۔ میرا موجودہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار JIT بنائی جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ علامہ عادل قاسمی امام و خطیب مسجد بلال اور دیگر نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے شہداء کے لواحقین اور اسیران ماڈل ٹاؤن کو خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت جو اسیران ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو اسیران ہیں ان کی ضمانتیں منظور کر ایک بہت آس دلائی ہے کہ اس ملک میں جو ہے انصاف کی بالادستی ہوگی، اور اس بات کو ہم بہت خوش آئند سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ غریب اور امیر کی یہ تقسیم کیے بغیر عدالتیں انصاف فراہم کریں گی اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک غیر جانبدار JIT بنائی جائے اور اس کا فیصلہ جلد سے جلد منظر عام پر لایا جائے، اور جو لواحقین ان شہداء کے اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے وہ انصاف کے منتظر ہیں، ان کو جلد سے جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ برطانیہ کے جنرل سیکرٹری کامران ستار نے کہا کہ کسی بھی کیس کے حل کے لیے غیر جانبدار JIT اپنا کردار ادا کرے تاکہ ملزمان کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کے مقامی لوگوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، جس میں اسیران ماڈل ٹاؤن کے 93 لوگوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا فیصلہ قصاص پہ کیا جائے، اور آخر میں یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ کفر کا قانون چل سکتا ہے لیکن ظلم کا قانون نہیں چل سکتا۔ قیصر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی اسکاٹ لینڈ۔ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام 5 جولائی کے حوالے سے زوم ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کے رہنماؤں سمیت پاکستان سے سابق چیئرمین سینٹ اور جنرل سیکرٹری نیئر حسین بخاری، چوہدری منظور، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی، صوبائی وزیر سعید غنی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام 5 جولائی کی مناسبت سے ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام نو منتخب ممبران میڈیا سیل پاکستان پیپلز پارٹی UK نے کیا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیئر حسین بخاری نے کہا کہ 5 جولائی کو ملکی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جس دن ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آج کیونکہ 5 جولائی کا دن ہے، اور 5 جولائی میں جو کچھ ہوا تھا، شرمیلا فروقی نے تو ماشاءاللہ کچھ بیان کیا ہے۔ اس دن درمیانی شب کو جب اس نے شب خون مار کے کر کے جو ہے کہ مارشل لا لگانے کے ساتھ آپ کو پتہ سارا آئین معطل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید بھٹو کی گرفتاری اور شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سابق سینیٹر سعید غنی نے اس موقع پر کہا کہ اگر 5 جولائی کو ملک میں مارشل لا نہ لگتا اور شہید بھٹو کی حکومت قائم رہتی اور شہید بھٹو کا عدالتی قتل نہ کیا جاتا تو پاکستان ایشیا کی سپر پاور بن چکا ہوتا۔ تمام مسائل پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال اب یہ ایک عذاب تھا اس ملک کے اوپر۔ اس موقع پر شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ مارشل لا دور کی داستانیں اور کہانیاں سن کر آج بھی ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی کی حکومتیں گئیں، پھر ایک طویل ایک آمریت کا دور آیا، ضیاء دور آیا،
क्लैशन कॉफ कल्चर, एक इंतहा पसंदी का कल्चर, एक रिलीजियस इनटॉलरेंस का जो कल्चर पैदा हुआ, वो उससे आज तक पाकिस्तान निकल नहीं पाया है। फैसल करीम कुंडी सूबाई सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया हमेशा से ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हर अव्वल दस्ता के तौर पर मुतहरक रही है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब उनके ऊपर टाइम आया उन्होंने फंड भी दिए, उन्होंने उनके लिए कैंपेनें भी की, लेकिन जब उन पर टाइम आया और जब वो वापस आना चाहते थे अपने मुल्क इस कोरोना की सिचुएशन में, तो आप देखें कि वो टिकटें हैं कि जो मैं मिसाल दूंगा, अगर वहाँ पर 500 यूरो की थी, वो उन्होंने 700 और 800 यूरो पे जो है ना बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया अजहर बड़ालवी ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक हकीकत पसंद और दिलेराना शख्सियत के मालिक थे। पार्टी के साथ आपने बिल्कुल जवां मर्जी से दिया और बड़ी अब डट कर बात करती हैं जब भी आप मीडिया पे आती हैं, तो आप जैसी जो इस वक्त जो पार्टी का एहसास है, आप एसेट है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग अंजम जुराल ने कहा कि भुट्टो शहीद कल भी एक जिंदा हकीकत थी और आज भी एक जिंदा हकीकत है। अल्लाह ताला हम लोगों को इसी तरह इस कोविड-19 के दौरान सेहत तंदुरुस्ती दे, हम इसी तरह से इस तरह की मीटिंग्स करते रहे और अपने इतने अच्छे, पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी हमारे बहुत से सीनियर लोगों ने हमें बहुत सी पार्टी के मुतालिक अच्छी बातें बताकर हम लोगों की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान में जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनका बड़ा फुकदान है, तो अगर इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जो है अपने ग्रुप में शामिल कीजिए। तो यही सवाल है कि if we can be any assistance to you and to the party and to our country, we are very patriotic Pakistanis and followers of Bhutto Sheikh. तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया सेक्रेटरी जनरल वुमेन विंग समिया अली, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर मेमन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंबर एजाज और दीगर पार्टी अहदेदारों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। गुलाम सैनवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। उनका कहना था कि हुकूमत जो मनसूबाबंदी कर रखी है उससे लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, रोज़गार महफूज होगा और कारोबार को एतमाद और नौजवानों को करियर शुरू करने के लिए बेहतरीन मौक़े मिलेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन आवान। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वजीर खजाना ऋषि सुनाक ने हुकूमत के मईशत बहाली पैकेज की चीदा चीदा खसूसियात और नुमाया फ़ायद पर धुआंधार इजहार ख्याल किया। ऋषि सुनाक का कहना था कि हुकूमत का मकसद इंतहाई वाज़ेह है, वो लोगों को मुलाजमतें देना चाहती है और कारोबार के लिए हालात को साजगार बनाने के लिए कोशा है ताकि लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए भरपूर सपोर्ट मिल सके। उन्होंने हुकूमत के फरलू प्रोग्राम की भी तारीफ की। Our plan has a clear goal to protect, support and create jobs. It will give businesses the confidence to retain and hire, to create jobs in every part of our country, to give young people a better start, to give people everywhere the opportunity of a fresh start. ऋषि सुनाक का कहना था कि वो नई पॉलिसी मुतारफ कराने जा रहे हैं जिसका मकसद मुलाजमीन को उनकी मेहनत पर इनाम और मराद देना है। Furlough has been a lifeline for millions, supporting people and businesses to protect jobs. But it cannot and should not go on forever. So today, we're introducing a new policy to reward and incentivize employers who successfully bring furloughed staff back. A new jobs retention bonus. कोरोना की वबा के दौरान नया कारोबार शुरू करने वाले नौजवान और कारोबारी अफराद उनके खिताब का खास मौजू थे। The Kickstart scheme will directly pay employers to create new jobs for any 16 to 24-year-old at risk of long-term unemployment. These will be new jobs, with the funding conditional on the firm proving these jobs are additional. These will be decent jobs, with a minimum of 25 hours per week paid at least the national minimum wage, and they will be good quality jobs, with employers providing Kickstarters with training and support to find a permanent job. ऋषि सुनाक का कहना था कि मुलाजमत से तवील अरसा फारग रहने वाले लोगों के लिए दोबारा बरसरे रोजगार होना खासा मुश्किल काम है। लाखों अफराद यूनिवर्सल क्रेडिट पर मुंतकिल हो रहे हैं, उन्हें काम के लिए वापस लाने की फौरी जरूरत है। Mr. Speaker, we know the longer someone is out of work,
the harder it is to return. Millions of people are moving onto universal credit. They need urgent support to get back to work. So, we are doubling the number of work coaches in job centres, increasing the flexible support fund, extending the rapid response service, expanding the work and health programme, and developing a new scheme to support the long-term unemployed. The academic and economic evidence tells us these are among the most effective things we can do. So I'm investing an extra £1 billion in DWP to support millions of people back to work. तामीराती शोबे के हवाले से वजीर खजाना ने बताया कि यह शोबा बरतानवी मईशत में हर साल 39 बिलियन पाउंड का हिस्सा रखता है। सिर्फ घरों की तामीर से ही लाखों अफराद को मुलाजमतें मिल सकती हैं। The construction sector adds £39 billion a year to the UK economy. House building alone supports nearly 750,000 jobs, with millions more relying on the availability of housing to find work. But property transactions fell by 50% in May. House prices have fallen for the first time in 8 years, and uncertainty abounds in the market, a market we need to be thriving. We need people feeling confident to buy, sell, renovate, move and improve. That will drive growth. That will create jobs. So, to catalyse the housing market and boost confidence, I have decided today to cut stamp duty. Right now, there is no stamp duty on transactions below £125,000. Today, I am increasing the threshold to £500,000. बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब के दौरान वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी मौजूद थे, जिन्होंने वजीर खजाना की तकरीर को इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत किया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया में लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से मकानों की कीमतों में मुसलसल 4 माह से कमी का रुझान बरकरार है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कीमतों में कमी के इस रुझान के बावजूद जून में मकानों की कीमतें गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 2.5% ज़्यादा थीं, मगर अब मुसलसल कीमतें गिर रही हैं और लोग खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आबान की रिपोर्ट। लेकिन मुसलसल 4 माह तक कीमतों में कमी का ये रुझान 2010 के आलमी मालियाती बहरान के बाद अब हाउसिंग मार्केट तजब्जुब का शिकार हुई है। जून आमतौर पर बरतानिया में मॉर्गेज के एतबार से मसरूफ तरीन महीना शुमार किया जाता है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियाँ उरूज पर रहीं और मई के मुकाबले में जून में मॉर्गेज से मुतल्लिक नई मालूमात के हुसूल में 100% इजाफा हुआ और जिन लोगों ने मकान की खरीदारी का इरादा मुलतवी कर रखा था, उन्होंने भी प्रॉपर्टी की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू की, जिसकी वजह से लेन देन की सरगर्मियां 1 माह कबल के मुकाबले में नुमाया रहीं। माहिरीन ने कहा है कि हम समझते हैं कि वस्त मुद्दती अरसे में प्रॉपर्टी की कीमतों में नुमाया कमी हो सकती है, ताहम इसका इन्हिसार हुकूमत की जानिब से मदद के लिए किए जाने वाले इक़दामात और मईशत की बहाली की रफ्तार पर होगा। नॉर्थ लंदन के स्टेट एजेंट और रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स के साबिक रेजिडेंशियल चेयरमैन जेरेमी लेफ का कहना है कि एक तरफ जून में मुसलसल चौथे माह प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, दूसरी जानिब मॉर्गेज से मुतल्लिक मालूमात में इजाफा हो रहा है। उधर अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ऑनलाइन वेबिनार में नए ओहदेदारान से मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर एम्बेसडर अकबर अहमद ने हलफ लिया। इस तकरीब में रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ और डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के लिए खुरम शहजाद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी और नुमाइंदा तंजीम है, जिसके प्लेटफॉर्म से मीडिया से मुंसलिक अफराद न सिर्फ आला अमरीकी क़यादत से राब्ते में रहते हैं, बल्कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गहरी निगाह भी रखते हैं। तंजीम के ओहदेदारों का हर साल चुनाव किया जाता है। रवाबर्स 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम शहजाद को पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया है। दीगर ओहदेदारान में वाइस प्रेसिडेंट नौज़ेरा आजम, जनरल सेक्रेटरी यूसुफ चौधरी, खजानची अजीज अहमद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साकिब इस्लाम, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में मरियम सभी और शमीम बानो शामिल हैं। नौ मुंतखब ओहदेदारान से ऑनलाइन वेबिनार में मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर एम्बेसडर अकबर अहमद ने हलफ लिया। That I will not allow my personal interest to influence the work or decisions of the organization.
that I will not allow my personal interests, the influence or decision of the organization. मारूफ रिपब्लिकन रहनुमा और सदर ट्रंप के करीबी साथी चौधरी साजिद तारड़ ने इस मौके पर नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और कहा कि अमेरिका में काम करने वाले सहाफ़ियों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये सहाफ़ी कौमों का मुस्तकबिल निखारने वाले हैं और बिलाशुबा अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर का किरदार अदा कर रहे हैं। सच कह के किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबाम है दरीना शनासा, पहुंचे हैं सरेदार तो घबराए नहीं हम। ये आप सबके नाम है, ये आप, क्योंकि आप सच को कहते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, तो ये बड़ा अननेचुरल सा होता है। इसको जस्टिफाई करना एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बल्कि कौमों का मुस्तकबिल निखारने वाले, बनाने वाले आप लोग हैं, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत और डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी मीडिया का इंडियन मीडिया के साथ मुकाबला होता है। इंडियन मीडिया सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी ऐसे मौके पर डिप्लोमेट्स की मिली जज्बे के तहत मदद कर रहे होते हैं। कोविड भी चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामलात भी इस तरह के चल रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं कि रुके हुए हैं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। चलने चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि रुके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को साथ ले जा कर के हमें बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि हाईलाइट करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जब आपका कंपटीशन इंडियन मीडिया के साथ होता है। ये जो सुबह से शाम तक एक तो होता है ना कि झूठ बोलना, वो इन्वेंट करते हैं नया झूठ सुबह से शाम तक, और उसको फिर काउंटर करना जो है वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि हमारे डिप्लोमेट्स की भी ड्यूटी है और आपकी भी। और यू ऑलवेज इम्प्रेस मी कि आप इक्वल पार्ट आप अपना कर रहे होते हैं, बल्कि आप डिप्लोमेट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। मारूफ सहाफ़ी रजा रोमी और एम्बेसडर अकबर अहम का कहना था कि पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन एक मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रही है और इसके काम को जारी रहना चाहिए। I think it is a very important time for quality journalism and quality information and communication to be out there. तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से पापा तो ऑलरेडी जो है एक बहुत अच्छा ग्रुप है मुख्तलिफ पूरी यूएस में जो हैं जर्नलिस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के, और उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा भी किया है। और मेरे ख्याल से हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ यूएसए में, उनके जो मुतअद्दिद इश्यूज उनको दरपेश हैं, उनके जो बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वो भी हमें सामने लेकर आने चाहिए। एट द सेम टाइम आप कोविड भी फेस कर रहे हैं, घर पे भी प्रॉब्लम्स हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, एंड एज समवन पॉइंटेड आउट, दूसरी तरफ से जो मीडिया है वो एक तूफान की तरह बड़े सगीर भी और यहाँ इज वेरी एविडेंट। तो आपका मुकाबला इज नॉट सिंपली गेटिंग सम न्यूज आउट, बट रियली टेकिंग ऑन इश्यूज व्हिच नॉर्मली जर्नलिस्ट डू नॉट हैव टू कोप विद। ऑनलाइन वेबिनार में शरीक तमाम अफराद का कहना था कि अमेरिका में सहाफ़त के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी सहाफ़ी जो मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं वो वतन अजीज़ की बहुत बड़ी खिदमत है। शिमाली कफकाज में वाक़ रूस की रिपब्लिक दागिस्तान के हुक्काम ने भी मसाजिद खोलने का फैसला किया है। रूस में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मॉस्को समेत दीगर रियासतों में भी मसाजिद को बंद कर दिया गया था, लेकिन जून में मॉस्को मसाजिद को खोल दिया गया था। रूस की रिपब्लिक दागिस्तान की आबादी ज़्यादातर मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन दागिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होने की वजह से दागिस्तान की मसाजिद नहीं खोली गईं। ताहम अब दागिस्तान के हुक्काम ने मसाजिद खोलने का फैसला किया है, जिस पर दागिस्तान की आवाम ने खुशी का इजहार किया। दागिस्तान के हुक्काम ने कहा कि नमाजियों को नकाब पहनने होंगे और एक दूसरे से 1.5 मीटर का फासला रखना होगा, जबकि मसाजिद में सफाई पर खास तवज्जो दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुबई के हुक्मरान, यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई मेट्रो के तौसी मंसूबे रूट 2020 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। रूट 2020 15 किलोमीटर पर मुहित है, जिसकी तकमील में 11 अरब दिरहम लागत आई है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। यह है दुबई का हकीकी चेहरा। दुबई शहर जदीदियत और इनफरादियत में अपनी मिसाल आप है। दुबई मेट्रो दुनिया की बेहतरीन मेट्रोज में से एक है। दुबई के हुक्मरान, यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई मेट्रो के तोसी मंसूबे रूट 2020 को भी लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग तकरीब की वीडियो
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अपने ट्विटर पर अपलोड कर दी। तकरीब से खिताब में दुबई के हुक्मरान का कहना था कि 47 माह पहले रूट 2020 मंसूबे का ऐलान किया गया था, जिस पर 11 अरब दिरहम लागत आई है। आज इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें 7 नए स्टेशन बनाए गए हैं, 50 ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। इस प्रोजेक्ट को 12,000 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने 8 करोड़ घंटे काम करके मुकम्मल किया। रूट 2020 15 किलोमीटर पर मुहित है, जो जबल अली स्टेशन को एक्सपो 2020 स्टेशन से मिलाता है। इस रूट को आम आवाम के लिए रवां साल सितंबर में खोल दिया जाएगा। ये रूट 7 स्टेशन पर मुश्तमिल है, जिनमें 3 एलिवेटेड और 2 ज़ेरे जमीन स्टेशन भी शामिल हैं। एक्सपो 2020 स्टेशन को आइकॉनिक स्टेशन का नाम दिया गया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अपने वफद के हमरा जबल अली स्टेशन से नई मेट्रो ट्रेन पर सफर भी किया। इस रूट के जरिए ट्रेन एक्सपो 2020 स्टेशन पर आकर रुकेगी, जो 18,800 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है, जिससे 5,22,000 मुसाफिर रोजाना सफर कर सकेंगे। नई मेट्रो जबल अली स्टेशन से चलेगी दी गार्डन स्टेशन, डिस्कोरी गार्डन स्टेशन, अल फजीरा स्टेशन, जमेरा गोल्फ स्टेशन, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क स्टेशन से होती हुई एक्सपो 2020 स्टेशन पर आकर रुकेगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूर, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।